Students, welcome to the class, and this video is for class 11th, and today's topic is normality. Normality is a concentration term. You can define as the number of gram equivalents of solute present in per liter of solution. Number of gram equivalents of solute present in per liter of solution. Now, so normality is equals to number of gram equivalent upon volume of solution in liter. Now, question is that what is gram equivalent? ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, होता क्या है। हमारे पास अभी अभी एक टर्म आया है ग्राम इक्विवेलेंट। सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट वेट, ये एक नया टर्म आ गया। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। Molecular weight upon charge. So you can write this gram equivalent as given weight upon molecular weight into charge. ठीक है, now this given weight upon molecular weight can be written as mole into charge. Okay, so this is gram equivalent. Now, to calculate normality, is equals to gram equivalent divided by volume. So this is mole divided by volume into charge from the previous equation. So mole divided by volume into charge. So this is WB upon MB into volume into charge. If this volume is in ml, then multiply with 1000. So this is the formula of what? Molarity. So molarity into charge is equals to normality. Molarity into charge is equals to normality. Okay, so you can simply write normality as
WB upon MB into V into 1000 into charge is equals to normality, or normality is equals to molarity into charge. Since molarity inversely proportional to temperature, so normality also inversely proportional to temperature. नेक्स्ट, चार्ज क्या है? इसमें ये जो बार बार ये वर्ड आ रहा है चार्ज, ये चार्ज क्या है? ठीक है, चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज के लिए क्या करेंगे? फॉर चार्ज कैलकुलेशन इन केस ऑफ AlCl3, एग्जाम्पल ले लिया AlCl3 का, दिस इज Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl सिंगल नेगेटिव. MgCl2 का ले लिया, दिस इज Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. NaCl का ले लिया, दिस इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. Now in each case there is 3 positive, 3 negative, 2 positive, 2 negative, 1 positive, 1 negative. So for this the charge is 3, this is the charge is 2, and for this the charge is 1. This is the value of charge. Now consider a question. A question. Calculate normality if 20 gram of CaCl2 dissolve in 200 gram of water, 200 ml of water, then given weight is equals to 20, molecular weight is equals to 40 plus 35.5 into 2, that is 111. ठीक है. Now charge is what? CaCl2 will break into Ca2 positive plus 2Cl negative, so that the value of charge is 2. Now volume is 200 ml. Okay, so put the formula. N is equals to WB upon MB into volume into 1000 into charge. Now put all the values, like N is equals to WB 20, MB 111, वॉल्यूम 200, 1000 के लिए 1000 और चार्ज के लिए 2. सो दिस इज 200 अपॉन 111. ये क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, ये आ गया नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन. हम इसकी मोलैरिटी निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी यही आंसर आता. एक क्वेश्चन और दिखाते हैं. इफ द molarity of a solution increases by, if the molarity of a solution increases by 3 times, then what is the effect on नॉर्मेलिटी. अगर ये आपका क्वेश्चन है, n इज इक्वल्स टू m इंटू चार्ज होता है. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट क्या है, ठीक है। अब सॉल्यूट जो भी है, सपोज दैट CaCl2 आपका सॉल्यूट है, इसमें चार्ज कितना होगा 2, AlCl3 आपका सॉल्यूट है, चार्ज कितना हो जाएगा 3, या NaCl आपका सॉल्यूट है, चार्ज कितना हो जाएगा 1। आई एम सेइंग दैट कि आपके पास ऐसे ही 3 टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं जिनका चार्ज 1, 2 या 3 होगा, ठीक है, जनरली। तो आप क्या करेंगे, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब या तो इसका आंसर 6 होगा, या इसका आंसर 9 होगा, या इसका आंसर 3 ही रहेगा, मतलब अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कि कैसे क्वेश्चन एक्चुअली में कैसे सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 0.5 मोलर H2SO4 solution have वॉल्यूम 50 ml, ठीक है। 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 50 ml है एंड डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है, सॉरी, जिसका कंसंट्रेशन 0.5 है और वॉल्यूम है 50 ml। अब क्या हुआ, इसी सॉल्यूशन को हमने ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, इसका नया वॉल्यूम हो गया 500 ml, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी के टर्म, ठीक है। देखिए, नॉर्मेलिटी के टर्म में कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए पहले हम इसकी मोलैरिटी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन नॉर्मेलिटी निकालेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ लेते हैं केस 1, डाइल्यूशन से पहले का केस। क्या, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB/MB इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। मोलैरिटी कितना है 0.5, WB कितना है पता नहीं है, MB कितना होता है, H2SO4 के लिए 98 आएगा, वॉल्यूम कितना है 98 कैसे आएगा, H2SO4, ठीक है। 1 × 2 + 32 + 64 इज इक्वल्स टू 98। वॉल्यूम कितना है 50 × 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 20। तो WB विल बी इक्वल्स टू 98 × 0.5 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा वो हो जाएगा WB। नाउ अब चलेंगे केस 2 में, ठीक है। केस 2 में जो मोलैरिटी 2 है वो हमें पता नहीं है, लेकिन WB पता है, तो WB/MB इंटू वॉल्यूम 2 इंटू 1000। अब WB की जगह क्या लिखेंगे, ये 98 × 0.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 98 इंटू 500 इंटू 1000, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू द न्यू मोलैरिटी। सो 98 से 98 कैंसिल हो गया, इससे हटाते हैं, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 000 से 000 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आया 1/20, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया M2, ठीक है। न्यू मोलैरिटी हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे आप, देन
नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू चार्ज। H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक करेगा, मतलब चार्ज कितना हो गया, चार्ज इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस मोलैरिटी वैल्यू में और हमारे पास क्या आ जाएगी, नई नॉर्मेलिटी। ठीक है, देन नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू 1/20 इंटू 2 दैट इज 1/10, तो 0.1 क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो पहला मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, एक इजी सा फॉर्मूला है हमारे पास, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, M1 क्या है, मोलैरिटी 1, M2 क्या है, मोलैरिटी 2, V1 इज वॉल्यूम 1 एंड V2 इज वॉल्यूम 2। ठीक है, वैल्यू रख दो सारी, वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, 0.5 इंटू 50 इज इक्वल्स टू M2 पता नहीं था लेकिन V2 पता है 500। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, 25 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू M2 इंटू 500, देन M2 विल बी इक्वल्स टू 25/500। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5/100, देन 1/20। यही मोलैरिटी आई थी पिछले क्वेश्चन में भी, मतलब पिछले मेथड से भी। ठीक है, नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू M2 इंटू चार्ज, 1/20 इंटू 2 दैट इज 0.1। तो दोनों केस में आंसर सेम है। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक मेथड है और वो थोड़ा लंबा मेथड है। ठीक है, तो आप किसी से ही बना सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। कभी भी हमें जो बड़ा मेथड होता है वो सीखना चाहिए, उसमें क्या है, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहता है। ऐसे गलती होने के चांसेस यहाँ भी बिल्कुल ही नहीं है, गलत नहीं होगा। नाउ एक और नया टॉपिक है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसे हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट with respect to total number of mole of the solution. Number of mole of one component with respect to total number of mole of the solution. So consider a solution with component A and component B. Number of mole of A is equals to Na and number of mole of B is equals to Nb. Okay, then total number of mole will be equals to Na plus Nb. So मोल फ्रैक्शन जो है x से डिनोट किया गया है। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A will be equals to Na upon Na plus Nb and mole fraction of B will be equals to Nb upon Na plus Nb. ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A is Na upon Na plus Nb, B is Nb upon Na plus Nb. ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक चीज़ ये है कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 है।
एक्स ए प्लस एक्स बी जो है ये 1 है। इसको याद रखेंगे, ये की पॉइंट है, ठीक है। कभी ये कैलकुलेशन अगर रॉन्ग हो गई तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को ऐड करके देखेंगे, वो 1 ही आएगा, ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, 1 आएगा हमेशा, ठीक है। मतलब ये एक बात क्लियर है, इन दोनों की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जैसे एक सपोज दैट अगर 0.9 आता है तो दूसरा 0.1 आएगा, ठीक है। ऐसी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट लेस क्वांटिटी कोई तब होती है जब उसके यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ स्पेशल बात क्या है कि दिस इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स। ये खुद ही ये यूनिट्स का ही रेशियो है, इसलिए ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये मोल का रेशियो है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। 180 ग्राम ग्लूकोज मिक्स्ड विथ 1800 ग्राम ऑफ वाटर। कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिया लग रहा है मैंने। 180 ग्राम ग्लूकोज मिक्स्ड विथ 1800 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन वेट इज इक्वल्स टू 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 1800 ग्राम, ठीक है। सॉरी नहीं, ये क्या है, गिवन वेट ऑफ ए है ये, क्योंकि ये क्या है सॉल्वेंट है। ये गिवन वेट ऑफ बी है, क्योंकि ये क्या है सॉल्यूट है। बी से हमने ग्लूकोज को लिखा है और ए से हमने वाटर को लिखा है, ये याद रखेंगे हम। नाउ n of A is equals to W of A upon M of A, and n of B is equals to WB upon MB. Now WA is 1800 and MA water for the value of MA for water is 18 only, that is molecular weight, and WB is given weight of solute, that is 180, and the molecular weight of solvent, that is C6H12O6, then 6 into 12 plus 12 into 1 plus 16 into 6, तो ये कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 180 ऑल्सो, देन 180 अपॉन 180, it is equals to 1 and this is equals to 100. Number of mole of solvent is 100 and number of mole of solute is 1. So the total number of mole is equals to 100 plus 1 is equals to 101, ठीक है। 101 टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है 101, देन XA विल बी इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB, यही फॉर्मूला था हमने जो अभी सीखा था। XA विल बी इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB, देन XB विल बी इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB, XB विल बी इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस
NB. Now put all the values 100 upon 1 plus 100 and then 1 upon 1 plus 100. This is equals to 100 upon 101 and this is equals to 1 upon 101. This is XA and this is XB. And here is the proof. When you add XA plus XB, it is always equals to 1, not more than 1, not less than 1. So 101 upon 100 plus 1 upon, actually this is 100 upon 101 plus 1 upon 101, then this is equals to 100 plus 1 upon 101, 101 upon 101 equals to 1. So the ratio of number of mole of one component to the number of mole of, to the total number of mole of solution is known as mole fraction, and mole fraction of sum of mole fraction of all the components must be equals to 1. If a solution have more than two components, if a solution have more than two components like A, B and C, A, B and C, then XA, XB and XC all equals to 1. Then XA is equals to NA upon NA plus NB plus NC, XB is equals to NB upon NA plus NB plus NC, and XC is equals to NC upon NA plus NB plus NC. So all these values belongs to the mole fraction, and mole fraction is a unitless quantity. So this is all about the term mole fraction. In the next lecture, we will discuss some numerical based on mole fraction and normality. Okay, thank you.